नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजस्थान में जो है सियासी सरगर्मी और भी ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और चुनावों से पहले जो है बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो है वो रैलियां करने के लिए राजस्थान पहुंच रहे हैं और उनकी रैलियों के जो है यहाँ पर सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि उनकी तरफ से जो इस वक्त कोशिश की जा रही है वो वहाँ की जनता को अपनी तरफ कम करने की, वहाँ के नेताओं को अपनी तरफ ज्यादा करने की हो रही है। यानी कि कांग्रेस के नेताओं में जो भी बगावती तेवर अपनाएगा उन तमाम नेताओं को जो है यहाँ बीजेपी अपने संरक्षण में लेगी। और यही वजह है कि राजस्थान की सियासत में जो है इस वक्त यहाँ सबसे पहले नाम सचिन पायलट और अशोक गहलोत का निकल करके आ रहा है कि उन दोनों में से किसी एक नेता के ऊपर जो है वो बीजेपी हमला करेगी। लेकिन यहाँ पर जिस नेता के बारे में सामने निकल के आया था, हमने अशोक गहलोत के भी बयान सुने जिसमें अशोक गहलोत जो है अपनी तरफ से बातें करते हुए नजर आए और उनके बयान से ये चीज बिल्कुल साफ हो गया कि वो पीएम मोदी के साथ नहीं जाने वाले हैं, भाजपा का साथ नहीं देंगे। और दूसरी तरफ जब बात सचिन पायलट की, जिन्होंने स्टार्टिंग में बगावती तेवर अपनाया था और अभी भी माना जा रहा है कि चुनावों से पहले जो है वो बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं, ऐसे में बीजेपी के खेमे में जाने से यहाँ पर जो है सचिन पायलट ने साफ साफ इनकार कर दिया। सचिन पायलट का एक वीडियो है, पहले आप वो देखिए। The government has failed to answer any question. It has shied away and is hiding itself from having a JPC. I think the argument that sometimes our friends from the BJP make, that let the probe happen, let the ED, the CBI, the IT, the authorities probe you, investigate you, harass you, raid you. If you have nothing to hide, open yourself up for investigation. The exact same principle is what we are applying now. If the government and the current dispensation have nothing to hide, why are they shying away from having a JPC? I see no answers coming from the BJP. The finance minister, the prime minister, not a single leader in the BJP has so far come out with the truth. They have not refuted any of the allegations made by the Hindenburg report or by the millions of young Indians who want to know about their future. Public sector undertakings have assets and money of savings of households in this country. It is the duty, the job, the responsibility and the obligation of the government of the day to protect their interests. Sadly, policies have been tweaked, assets have been undervalued, concessions have been made, and people have used government agencies to drive away competition so that one particular company, one particular group gets all the benefits. It's very disheartening that a government that has been in power for the last 8.5 years with a full majority is refusing to allow any investigation, and even now the very weak investigation that they may seem to have agreed upon will just be an open and shut case. We are asking the government of India to open up, to be transparent, to live up to its own commitments. प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अभी लाखों करोड़ रुपए जो खा रहे हैं, भाग रहे हैं, इनके लिए वो क्या कर रहे हैं इसका कोई जवाब नहीं। Long, boisterous speeches in parliament will not take away from the fact that there has been obvious misgovernance, there has been acts of omission and commission, collusion, and prima facie people of India believe that something is wrong. दाल में कुछ काला है, कितना काला है, किसने काला किया, उसकी जानकारी के लिए एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्रोब होना चाहिए। इसलिए भारत के पार्लियामेंट की अगर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसके बनने से दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। मुझे लगता है कि भारत सरकार को और खासकर बीजेपी को they must come forward and open themselves up for this sort of a investigation. This is the tenets of our democracy being questioned. When leaders, opposition leaders' speeches are expunged from the parliamentary records, it's unbecoming of a healthy democracy. When questions are not answered, there are no press conferences. Parliament में क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब मिलता नहीं है, इंक्वायरी आप कराते नहीं हैं, जेपीसी के लिए आप मानते नहीं हैं, आप देश भर में प्रचार कर रहे हैं अपनी ईमानदारी का, तो why don't we have this test and let's have an open JPC probe into the entire investigation. That's what we have been demanding, and I think as Congress party, we believe it is our duty as a responsible opposition to ask the right questions, to ask for transparency, for openness, and for asking the BJP to live up to its own words. I see the Prime Minister and the Government of India failing in all these regards.
Therefore, public pressure must be mounted. We as Congress party have tried to come on the streets, upper house of parliament, Lok Sabha, everywhere we trying to make sure that we speak for the interest of the voters, small investors, households in this country. Because if people are allowed to get away with this, then people will lose confidence in our regulatory systems, in our banking structures, in our financial strengths. So this is the right time where the BJP should come out and have JPC. अभी आप सचिन पायलट को सुन रहे थे। सचिन पायलट के बयान से ये बात बिल्कुल साफ होगी, जिस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे थे, उससे ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है कि आने वाले समय में भी वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। बहरहाल अब मेरे साथ शाहजेब जुड़ चुके हैं। शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की सियासत में जो है हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, चुनावी रण को देख करके क्या लग रहा है, बीजेपी जीतेगी या फिर यहाँ पर कांग्रेस का खेमा? देखिए, कांग्रेस जो है वहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन भाजपा ने भी इस बार जो है संगठन में को मजबूत करने के लिए राजस्थान में बहुत अच्छे तरीके से काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जैसलमेर से लेकर के दौसा से लेकर के तमाम क्षेत्रों में जिस तरीके से दौरा हुआ है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस चीज की उम्मीद लगाई हुई है। और देखिए, जन आक्रोश यात्रा जो है वो भी वहाँ पर निकाली गई थी राजस्थान में, तो भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर मजबूती से जो है निकल करके सामने आ रही है। लेकिन सवाल एक बार यही है, और सवाल जनता का भी यही रहेगा कांग्रेस से चुनाव से पहले, कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है। क्योंकि अशोक गहलोत को अब दोबारा से शायद जनता मौका नहीं दे, क्योंकि अशोक गहलोत को भी मौका जो मिला था वो भी कहीं ना कहीं सचिन पायलट के बदौलत मिला था, लेकिन सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया। और अब भी अगर कांग्रेस इस चीज को लेकर के एक अहम फैसला नहीं लेती है, क्योंकि अशोक गहलोत ने गद्दार तक कह दिया सचिन पायलट को, अगर कांग्रेस नहीं लेगी फैसला तो भारतीय जनता पार्टी को बिना बगावत के यहाँ पर फायदा जो है देखने को मिल जाएगा। कि अगर कोई नेता बगावत करता भी नहीं है, सचिन पायलट वगैरह बगावत पे नहीं उतरते, उसके बावजूद भी जो है भारतीय जनता को पार्टी को फायदा मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन शाहजेब, अभी जो हमने वीडियो जनता को दिखाई है उसको अगर देखें तो यहाँ पर सचिन पायलट के जो कड़े तेवर देखने को मिले थे बीजेपी के लिए, और जिस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर थे, उसको देख करके तो ये लग रहा था कि वो बीजेपी में शामिल होंगे ही नहीं, चाहे उनको जो है कांग्रेस की तरफ से सीएम बनने के लिए जो है आगे किया जाएगा भी या नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस अगर उनको सीएम पद के लिए आगे नहीं पेश करती है तो इसमें कांग्रेस का नुकसान होगा, इसमें सचिन पायलट का नुकसान नहीं। क्योंकि सचिन पायलट के पक्ष में इतने विधायक तो हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उनका गठबंधन हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जाकर के सरकार बना ले, सीएम बन जाए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, तो सचिन पायलट को कांग्रेस को उतारना उनकी मजबूरी होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए राजस्थान में जो है कांग्रेस की तरफ से कौन सा चेहरा इस बार सीएम रेस के लिए दिखाई देगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो है सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने अपनी तरफ से ये रुख जरूर साफ कर दिया है कि वो भले ही अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे लेकिन वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। ऐसे में बीजेपी का अगला कदम क्या होगा वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।